Hello, everyone, and welcome. So, today we're going to decode a topic that's secretly the magic behind your favorite video games and even Google Maps. Yep, we're jumping into Class 10 Maths, Chapter 7, Coordinate Geometry. Ready to get started? Have you ever thought about how Google Maps instantly knows the shortest route from your home to your school? Or how in your favorite game, a character finds the perfect path from point A to point B? Well, the secret behind all of that is coordinate geometry. So, in our learning journey today, we're going to clear these 5 levels to really master this concept. We'll start by understanding our map, then we'll find the ultimate formula, and finally, we'll put our new skills to the test. You ready? All right, level 1. Before we even start our quest to find distances, we've got to understand our map, our game board. So, let's do a quick recap of the Cartesian plane. So this is our game board. You've got a horizontal line, which we call the x-axis, and a vertical line, the y-axis. Every single point on this map has its own unique address in the form of x, y. And every point on this map has a unique address, right? We describe its position using x, y coordinates. And just remember, the x-coordinate is also called the abscissa, and the y-coordinate is the ordinate. Simple enough. Let's move on. Level 2. Now it's time for a few easy wins. Let's start with the most straightforward cases, shall we? Look, if 2 points are on the same horizontal line, finding the distance is super easy. You just subtract their x-coordinates. Like here, for points A and B, 6 minus 4 gives you 2. And guess what? The exact same logic applies to the y-axis. For points C and D, it's just 8 minus 3, which is 5 units. Easy, right? But here comes the real challenge. What if the points are on a diagonal? Now you can't just count the squares anymore. So how in the world do we find the distance of a line like that? Well, to solve this challenge, we have an ultimate power-up, a hero that we've all known since we were kids, the Pythagoras theorem. Remember this one? In any right-angled triangle, the square of the base plus the square of the height is equal to the square of the hypotenuse. This simple little theorem is our secret weapon. Plan is actually pretty simple. Take any 2 points, let's call them P and Q. First, draw a line between them. Now, from these same points, draw horizontal and vertical lines until you create a right-angled triangle. All you have to do then is calculate the length of the 2 sides and, boom, just use the Pythagoras theorem. Okay, time for the boss level. We're going to combine all these steps into a single, powerful formula that's going to work in every single situation. I'm talking about the distance formula. So think about it. If our points are P of x1, y1, and Q, x2, y2, what would be the length of the horizontal side, the base of that right-angled triangle we made? Simple. It's just the difference between the x-coordinates, x2 minus x1. And the vertical side, the height, well, that's just the difference in the y-coordinates, y2 minus y1. Now, all we have to do is plug these values into our Pythagoras theorem, which is base squared plus height squared equals distance squared. That gives us x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared equals distance squared. Just move the square over to the other side, and we get our ultimate weapon, the distance formula. Make sure you write this one down because it is so important. All right, let's head to the final level, the victory lap. It's time to take this brand new formula and apply it to a real problem from your textbook. So here's the problem. We have 3 points, P, Q, and R. We need to figure out if these 3 points can come together to form a triangle. To do that, we're going to need to find the length of all 3 sides, PQ, QR, and PR. First up, let's find the length of side PQ. We're going to plug the values for P of 3, 2 and Q of -2, -3 into our distance formula. So x2 minus x1 will be -2 minus 3, and y2 minus y1 will be -3 minus 2. When we plug those values into the formula and solve it, we get the square root of 50, which is approximately 7.07 units. Okay, one side down. Great. Now for the next side, QR. The process is exactly the same, but this time we'll use the coordinates for Q -2, -3, and R 2, 3. Let's do the math. And after solving that, we get the square root of 52, which is about 7.21 units. 2 sides done. And now for the last side, PR. For this one, we'll plug the coordinates for P, 3, 2, and R, 2, 3 into the formula.
And the calculation for this gives us the square root of 2, which is approximately 1.41 units. Perfect. We now have the lengths of all three sides. So the big question, is it a triangle? Let's check. The golden rule for a triangle is that the sum of any two sides must always be greater than the third side. Let's see. 7.07 plus 1.41 is definitely greater than 7.21. 7.21 plus 1.41 is greater than 7.07. And 7.07 plus 7.21 is way greater than 1.41. All the conditions are met. So, yes, these points absolutely form a triangle. So there you have it. You now have the power to find the straight line distance between any 2 points. But here's a thought. Can you find the exact point in the middle, the midpoint? Well, that's something we'll find out in our next explainer. See you then. Hello students और वेलकम है आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस एक्सप्लेनर में। तो तैयार हैं आप सब? आज हम बनने वाले हैं मैथ डिटेक्टिव्स। हमारा मिशन है कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल मिस्ट्रीज को सॉल्व करना और इसके लिए हमारे पास है एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट वेपन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इससे पहले कि हम अपने टूल्स निकालें और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, चलो एक बड़ा सवाल सामने रखते हैं। जरा सोचिए, आखिर एक सिंपल सा फॉर्मूला, जस्ट वन फॉर्मूला, इतने सारे अलग अलग ज्योमेट्रिक पजल्स को, इतनी सारी मिस्ट्रीज को आखिर सॉल्व कर कैसे सकता है? इस सवाल को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हमारे केस फाइल्स। सबसे पहले हम अपने सुपर टूल को अच्छे से समझेंगे, फिर हम 3 अलग अलग केसेस सॉल्व करेंगे और एंड में एक नया चैलेंज अनलॉक होगा। चलिए अपनी पहली फाइल खोलते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हर डिटेक्टिव के पास एक खास टूल होता है, राइट? शर्लॉक के पास मैग्नीफाइंग ग्लास था, हमारे पास भी कुछ है। चलिए अपनी डिटेक्टिव टूल किट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल चेक कर लेते हैं, थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करते हैं और मिलते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के हीरो से, द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये है हमारा सुपर टूल। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये फॉर्मूला हमें एक ग्राफ पर या एक प्लेन पर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट दूरी बताता है। इसको नोट डाउन कर लो या बेटर है दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये हर केस में काम आने वाला है। ठीक है डिटेक्टिव, आपका पहला केस आपके सामने है। हमें एक मिस्ट्री शेप की आइडेंटिटी, उसकी पहचान पता लगानी है और हमारे पास क्लूज के नाम पर सिर्फ उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। मीट आवर सस्पेक्ट्स A, B, C और D। ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक क्वाड्रिलैटरल, एक 4 साइड वाला शेप बना रहे हैं। पर कौन सा शेप? क्या ये एक रेक्टेंगल है, रोम्बस है या कुछ और? यही तो मिस्ट्री है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे करें? सिंपल है, हम एक प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे। स्टेप 1, हम चारों साइड्स की लेंथ निकालेंगे अपनी डिस्टेंस फॉर्मूला से। स्टेप 2, हम दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, यानी ऑपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ने वाली लाइंस। और स्टेप 3, हम इन सारी लेंथ्स को कंपेयर करके आखिरी फैसले पर पहुंचेंगे। ओके, अब देखो, हमने सारी मेहनत कर ली है और सारा एविडेंस इस टेबल में डाल दिया है, हमारी एविडेंस ट्रे। लेट्स लुक क्लोजली। साइड AB √34, BC वो भी √34, CD और DA भी √34। इंटरेस्टिंग। और डायगोनल्स AC और BD दोनों ही √68। The evidence is pointing somewhere. एंड द वर्डिक्ट इज इन। साबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और इसकी दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक स्क्वायर की होती है। परफेक्ट मैच। केस क्लोज डिटेक्टिव्स। ऑसम, पहला केस सॉल्व। अब टाइम है केस फाइल नंबर 2 का। इस बार हमारा क्राइम सीन बदल गया है। इस बार हम ज्योमेट्री को अप्लाई करेंगे एक क्लासरूम में, बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन। चलिए देखते हैं। तो पिक्चर ये है, 3 दोस्त हैं, आशमा, भारती और कैमिला। क्लास में अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। सवाल सिंपल है, क्या ये तीनों एकदम सीधी लाइन में हैं, यानी आधे कोलिनियर? यही हमें पता लगाना है। तो इसको चेक करने का एक सुपर सिंपल तरीका है। सोचो, अगर A, B और C एक ही लाइन में है, तो A से B तक का डिस्टेंस प्लस B से C तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही, A से C तक के टोटल डिस्टेंस के। सिंपल लॉजिक, राइट? यही है हमारा मेन क्लू इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो काम पे लगते हैं।
अपना ट्रस्टी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो और तीनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो। पहले आशिमा से भारती का डिस्टेंस यानी AB, फिर भारती से कैमिला BC और आखिर में आशिमा से कैमिला AC। लेट्स सी व्हाट द नंबर्स हैव टू से। एंड देयर वी हैव इट। देखो, AB प्लस BC यानी 3√2 प्लस 2√2 मिलके बनता है 5√2 और AC यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? एग्जैक्टली 5√2। द मैथ चेक्स आउट। तो हाँ, दे आर सिटिंग इन अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। केस नंबर 2 सॉल्व। ऑलराइट, 2 cases done and dusted. You guys are on a roll. चलो अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। रेडी फॉर अ रियल चैलेंज? अब हमें एक इल्यूसिव यानी एक मिसिंग पॉइंट ढूंढना है। क्लू, उसका रिश्ता दूसरे 2 पॉइंट्स के साथ। ओके, इस केस को क्रैक करने के लिए हमें एक नया वर्ड समझना होगा, इक्विडिस्टेंट। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस। सो इक्विडिस्टेंट का सीधा सा मतलब है इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर दूरी। सिंपल। तो ये है हमारा चैलेंज। हमें एक पॉइंट P ढूंढना है जो y एक्सिस पर है। अब y एक्सिस की खास बात क्या होती है? उस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, y। हमें बस इस मिस्ट्री y को फाइंड आउट करना है इस क्लू के साथ कि P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। अगर इसे विजुअली सोचे तो इसका क्या मतलब है? देखो, कोई भी पॉइंट जो A और B से बराबर दूरी पर हो वो इस स्पेशल लाइन पर ही होगा जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और हमारा मिस्ट्री पॉइंट P वहाँ है जहाँ ये लाइन y एक्सिस को कट करती है। चलो अब मैथ्स करते हैं। हमारा क्लू क्या था कि डिस्टेंस AP डिस्टेंस BP के बराबर है। AP इक्वल्स BP। अगर डिस्टेंसेस बराबर हैं तो उनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे, राइट? तो AP स्क्वायर इक्वल्स BP स्क्वायर। स्क्वायर करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाता है। अब बस वैल्यूज डालो और y के लिए सॉल्व करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी सी अलजेब्रा और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल गया। y = 9। तो हमारा मिस्ट्री y मिल गया। इसका मतलब हमारा इल्यूसिव मिस्ट्री पॉइंट है 0,9। मिशन अकम्प्लिश्ड। देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला ने एक और थोड़ा मुश्किल केस भी सॉल्व कर दिया। तो अब तक हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला एक सुपर हीरो रहा है। 3 अलग अलग डिफिकल्ट केसेस सॉल्व कर दिए। पर क्या ये हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? व्हाट इफ द मिस्ट्री इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड? क्या होगा जब डिस्टेंस फॉर्मूला काफी ना हो? जरा इस नई सिचुएशन को देखो। यहाँ एक कंपनी को एक टावर लगाना है पॉइंट P पर कंडीशन ये है कि ये पॉइंट P A और B के बीच की लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करे। यहाँ तो सिंपल डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा। वी नीड समथिंग मोर। तो आखिर सवाल ये है कि इस पॉइंट P को कैसे लोकेट करें? इसके लिए हमारे मैथ डिटेक्टिव्स टूल किट में एक नया और भी पावरफुल टूल आने वाला है, द सेक्शन फॉर्मूला। बट ये क्या है और कैसे काम करता है? ये हम जानेंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक इसके बारे में सोचते रहिए। स्टे क्यूरियस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, द सेक्शन फॉर्मूला। ये चैप्टर 7 का 3rd पार्ट है और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो तैयार हो जाओ कुछ इजी मार्क्स स्कोर करने के लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सोचना इसके बारे में। सोचो, आपके पास एक लाइन है जो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाती है और आपको इस लाइन पर एक पॉइंट P लगाना है इस तरह से कि A से P तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस 2:3 के रेशियो में हो। तो आप उस P पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करोगे? यही प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हमारे पास है एक सुपर पावरफुल टूल और हमारे आज के हीरो का नाम है द सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, आई नो, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? इट लुक्स स्कैरी, बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप इसका पैटर्न समझ गए ना तो ये मक्खन है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसको याद कैसे रखें? सिंपल, एक सुपर ट्रिक है। देखो, M1 को पेयर करना है दूर वाले कोऑर्डिनेट से यानी B वाले से, x2 और y2 के साथ, और M2 को पेयर करना है उसके दूर वाले कोऑर्डिनेट से यानी A वाले से, x1 और y1 के साथ। देखा, एक क्रॉस बन रहा है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और नीचे रेशियो का टोटल। सिंपल एज दैट। ओके, थ्योरी तो समझ ली, अब इसको एक्शन में देखते हैं।
है ना? चलो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही एक एग्जाम्पल उठाते हैं। लेट्स डू इट। ठीक है, सो ये बिल्कुल सीधा सवाल है। वी हैव द पॉइंट्स, वी हैव द रेशियो, बस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग करनी है। ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले सारी वैल्यूज को लिख लो। पॉइंट ए यानी x1, y1 है 4, -3, पॉइंट बी यानी x2, y2 है 8, 5 और हमारा रेशियो m1:m2 है 3:1। अब सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में फिट करते हैं। रिमेंबर द क्रॉस ट्रिक। x के लिए m1 यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले x2 यानी 8 से, फिर m2 यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 यानी 4 से, ऐड देम और नीचे 3 + 1। सेम चीज y के लिए सॉल्व करो एंड वी गेट 7, 3। सी दैट वाज सुपर इजी। ऑलराइट, रेडी फॉर अ चैलेंज? अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बार क्वेश्चन उल्टा है। हमें बीच का पॉइंट P दे दिया है और हमसे रेशियो पूछ रहे हैं। सो वी हैव टू वर्क बैकवर्ड्स। अब देखो, आप रेशियो को m1:m2 भी ले सकते हो, बट उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक स्मार्ट तरीका है, एक शॉर्टकट। हम रेशियो को अज्यूम कर लेंगे k:1। इससे क्या होगा? हमें सिर्फ एक वेरिएबल k की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। स्मार्ट है ना? सो फॉर्मूला वही रहेगा, बस m1 की जगह k और m2 की जगह 1। और एक और कूल बात, आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट को यूज करके भी k निकाल सकते हो या सिर्फ y कोऑर्डिनेट को यूज करके, आंसर सेम ही आएगा। चलो फॉर दिस एग्जांपल हम x कोऑर्डिनेट से इक्वेशन बनाते हैं। बस अब ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स ओपन करो, k वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, नंबर्स को दूसरी साइड। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? k = 2/7। अब रुको, ये आंसर नहीं है। रिमेंबर, हमने रेशियो माना था k:1, तो रेशियो हुआ 2/7:1। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करो एंड वी गेट 2:7। दैट्स आवर फाइनल आंसर। ओके, अब एक बहुत ही स्पेशल केस देखते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और आपका बहुत टाइम बचा सकता है, सो ध्यान से सुनना। एक सिंपल सवाल, अगर कोई पॉइंट P लाइन AB के बिल्कुल बीच में है, एग्जैक्टली इन द मिडल, तो रेशियो क्या होगा? थिंक अबाउट इट। एग्जैक्टली, अगर पॉइंट बीच में है तो दोनों तरफ का हिस्सा बराबर होगा, तो रेशियो इज 1:1। और जब आप सेक्शन फॉर्मूला में m1 और m2 की जगह 1 और 1 डालते हो तो क्या होता है? फॉर्मूला इतना सिंपल हो जाता है, बस x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड। इट्स जस्ट द एवरेज। चलो अब देखते हैं कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला दूसरे ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में कैसे काम आता है। लेट्स सॉल्व अ पैरेललोग्राम मिस्ट्री। ओके, सो पैरेललोग्राम की एक सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद है? उसके डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जहां वो एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। सो द मिड पॉइंट ऑफ AC इज द सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यही इस क्वेश्चन की है। तो इस क्वेश्चन में हमें A, B, C, D 4 वर्टिसेस दिए हैं, बट D का x कोऑर्डिनेट यानी P मिसिंग है और हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करके P को ढूंढना है। सो हम क्या करेंगे? सिंपल, विल राइट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों तरफ हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, बस इतना ही करना है। अब देखो, अगर ये दोनों पॉइंट्स बराबर हैं तो इनके x कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होंगे और y कोऑर्डिनेट्स भी। हमें तो सिर्फ P चाहिए जो x कोऑर्डिनेट में है, तो हम सिर्फ x पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। 6 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 8 + P डिवाइडेड बाय 2। दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया एंड वी गेट 15 इक्वल्स 8 + P। इससे P की वैल्यू आ गई 7। हाउ सिंपल वाज दैट? तो आज हमने जो भी सीखा उसका आखिर मतलब क्या है? व्हाट्स द बिग पिक्चर? यू बेसिकली लर्न्ड अ मैथ सुपर पावर टुडे। अब आप किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हो, और ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। रियल लाइफ में इंजीनियर्स इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ब्रिजेस का सेंटर ऑफ बैलेंस या बिल्डिंग्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं ताकि वो स्ट्रांग और स्टेबल बने। सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ ब्रिज, सोचना उसके पीछे भी यही मैथ है। सो कीप थिंकिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस और पढ़ते रहो।